Okay, so our today's topic is text-based formulas in Excel. Okay, text-based formulas in Excel. So before starting, अगर आप लोगों को कोई doubts है regarding to previous class जो हमारी थी like import, how to import data from text file, CSV file, अगर कोई doubts है you can ask. Any doubts? Hello. Okay. Okay. So, so basically, I think you all know how to start a formula. Okay. So यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि like statistic का methods क्या है. Like first method क्या है statistic का? Collection of data. Okay. So in our previous class we have done how to collect the data from different sites. ठीक है, different sources. Now in statistic और एक हमारा method है like transforming the data. So whenever you are getting the data like you are getting the data from different kinds of sources, so आप लोगों को idea नहीं रहता कि like वहाँ पर कैसा data आता, right? तो उसके अंदर आप लोगों को raw data भी आ सकता, accurate data भी आ सकता, like clean वाला भी data आ सकता, but you don't have any idea. But what if you get the raw data? ठीक है, raw data means unclean data. So you have to convert that, जो भी data आएगा आपका raw data आएगा उसको you have to convert that into a clean data. After that you can, आप उसके ऊपर analyze कर सकते और आप उसके ऊपर reports and dashboard create कर सकते. Only you can create reports and dashboard on clean data. Okay, अगर आपका raw data रहा तो उसके ऊपर आप मीन्स एनालाइज नहीं कर सकते. ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मूलास है. like if you want to know how many formulas, text based formulas we are having, so you have to go to the data tab in Excel. You have to go formulas tab. Okay, in formulas you are having text option in function library. Okay, you have to click on this one. So basically text formulas, why we are using text formulas, as you hover on the text you can get the add a text function to your worksheet. Okay, so if you click on this you will get all the text formulas. Okay, but today we will see the most usable text formulas in Excel. Okay, so in text formulas what you are doing is like you are converting your data, means जो requirement का हिसाब से रहेगा you are converting the data. Okay, so simply we are having upper function in Excel. Basically upper function क्या करता है बोला तो it will help you to capitalize your data. Okay, जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा उसको क्या करेंगे, उन्हें कैपिटलाइज में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे. it helps you to convert text into or you can write it helps you to capitalize your data. Capitalize the data. Okay, so simply we will do that method. जो हमारा फंक्शन है upper function, basically यहाँ पर देखिए हमारे पास है employees names. Okay, जहाँ पर यहाँ पर देखिए I don't have any proper format of this data. ठीक है, तो ये जो भी डेटा है वो क्या है, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो आई वांट टू कन्वर्ट दिस इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे अपर फंक्शन. ओके, यहाँ पर मैं अपर लिखूंगा बिकॉज आई एम डूइंग हियर अपर. ओके, तो हाउ यू आर डूइंग, जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, व्हेनेवर you have to start, means you have to use a function or formula, you just have to press equal sign. ठीक है, तो इक्वल साइन लिखे, देन यू हैव टू टाइप अपर. सिंपल आप अपर टाइप करते हैं, यहाँ पर आपको
सजेशन आ जाता। ओके, देन यू हैव टू डू व्हाट, यू जस्ट हैव, यू कैन सेलेक्ट विथ योर कर्सर, आप यहाँ पर माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यू कैन गो विद द टैब की इन योर कीबोर्ड। ओके, सिंपली टैब की पे प्रेस करें, यहाँ पर आपको अपर का सजेशन स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स यहाँ यू कैन एक्सेस द अपर फंक्शन। ठीक है, सिंपल। देन आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट which you want to convert in a capitalized format. Okay, so here is the cell, this is the cell, I want to convert this cell into capitalized. Okay, so simple आपको text select करना है and then close the bracket and enter it. तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर जो भी हमारा डेटा था वो क्या हुआ, कैपिटलाइज हो गया, जितने भी लेटर्स थे हमारे वो पूरे कैपिटलाइज हो गए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इट विल ओवरराइड इन अ next cell. So simply you have to adjust the width, you have to double click on this one to adjust the width. Okay, next thing is what, यहाँ पर तो आप ये फर्स्ट वन तो मीन्स फर्स्ट क्या बोलते हैं आप, फर्स्ट डेटा तो कैपिटलाइज कर लिए, बट व्हाट इफ यू वांट टू डू ऑल द डेटा, सिंपल आप यहाँ पर अगेन यहाँ पर इक्वल टू साइन लिख के फिर से करेंगे, अपर बल्कि यहाँ पर फिर से टाइप करके यहाँ पर फिर से लिखेंगे। सो फॉर दैट क्या करना है, कॉपी पेस्ट करेंगे सर, कॉपी पेस्ट करेंगे, just have to drag it, ये जो यहाँ पर आप you have to select the cell and then आपको यहाँ पर क्या करना है, ड्रैग करना है। ठीक है, ड्रैग at the end of the data। ठीक है, सिंपली ड्रैग करें तो ये क्या हुआ, आपका रिलेटिव सेल, उन्हें क्या करा, उन्हें जो भी आपका डेटा है, मीन्स जहां से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स ये जो सेल में से आप डेटा ले रहे हैं वो सेल में से आपको डेटा लाते जाएंगे एक्सेल फॉर्मेट। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट अपर के अपर फंक्शन से क्या करें, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कैपिटलाइजिंग द ऑल द कैरेक्टर्स, बट विद द लोअर फंक्शन हम क्या कर सकते हैं, अगेन वी आर हैविंग लोअर फंक्शन। सो विद द हेल्प ऑफ लोअर फंक्शन वी कैन डू, अब if suppose if you want to convert your data in lower case, ठीक है, सिंपली व्हाट यू हैव टू टाइप लोअर। ओके, तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन लूंगा, इट हेल्प्स यू टू लोअर ऑल द डेटा। ओके, यहाँ पर आप लोअर बोल के यहाँ पर लिखूंगा मैं LOWER। ओके, इक्वल टू लोअर। ठीक है, इक्वल टू लोअर से क्या कर रहे हैं आप, यू आर कन्वर्टिंग डेटा इन लोअर फॉर्मेट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, यू हैव टू प्रेस द टैब की टू एक्सेस द लोअर फंक्शन। ओके, सिंपली जो आपको टेक्स्ट लोअर करना है वो आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, क्लोज ब्रैकेट करें, एंटर करें। ओके, देन एडजस्ट करें, आपका कॉलम विड्थ एडजस्ट करें, यहाँ पर आप क्या करें, डबल यू कैन ड्रैग और यू कैन डबल क्लिक ऑन दिस वन टू ऑटोफिल ऑल द वैल्यूज। ओके, सिंपली यू हैव टू पुट द कर्सर ऑन दिस डॉट एंड देन डबल क्लिक टू एक्सेस, मींस टू ऑटोफिल ऑल द डेटा। ओके, यहाँ पर देखिए जो डेटा होना है वो ही डेटा आया, एंड डेटा किसमें हुआ, पूरा हुआ कन्वर्ट इनटू द लोअर केस। ओके, क्लियर है ये, इसमें कुछ डॉट। एंड वंस अगेन यहाँ पर देखिए आप, अब मैं यहाँ पर एम्प्लॉइज नेम के अंदर राहुल शाह पे क्लिक कर रहा हूँ, तो हियर आई एम गेटिंग राहुल शाह। ओके, बट हियर व्हाट आई एम सीइंग, हियर आई एम गेटिंग द फॉर्मूला व्हिच आई हैव यूज्ड। ओके, so to convert this formula into values, so what you have to do, simply एक ट्रिक है आपके, तो यहाँ पर आपको you have to select the data, how you are selecting, you can go with the mouse or you are having a shortcut key control shift down arrow to select all the column। ठीक है, simple आप select कर लिए, then control C for copy। okay, then you have to right click on it and then you have to go to the specials। okay, in specials you are having paste as values, paste values में आपको क्या सेलेक्ट करना है, values ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सिंपली values ऑप्शन पे क्लिक करें, एस्केप की करें, यहाँ पर देखें अब यहाँ पर राहुल शाह शो कर रहा, यहाँ पर भी राहुल शाह शो करता है इंस्टेड ऑफ शोइंग फॉर्मूला, बट वी हैव यूज्ड फॉर्मूला इन दिस कॉलम, राइट। हाँ, देन अगेन यहाँ पर सेम क्या है, यहाँ पर देखिए लोअर फंक्शन शो कर रहा, तो टू कन्वर्ट दिस फंक्शन इनटू फॉर्मूला आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यू आर सेलेक्टिंग ऑल द डेटा
कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड देन कंट्रोल सी फॉर कॉपी, मींस कंट्रोल सी से क्या कर रहे हैं, यू आर कॉपिंग द वैल्यूज विच यू हैव सेलेक्टेड। ओके, नेक्स्ट राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल्स में जाके आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट द पेस्ट वैल्यूज। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या शो कर रहा है, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ शोइंग फॉर्मूला यहाँ पर क्या शो कर रहा है, वैल्यू शो कर रहा, एंड देन यू कैन एडिट द वैल्यू ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यहाँ पर हम अपर फंक्शन भी देख लिए और वी कैन सी वी हैव सीन लोअर फंक्शन। अब यहाँ पर हम देखेंगे ट्रिम फंक्शन। ओके, सो ट्रिम फंक्शन हेल्प यू टू, it helps you to clear all the extra spaces from the text. Okay, तो as you can see यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर extra spaces है in between, means in before the text or after the text. Okay, यहाँ पर extra spaces है, as you can see यहाँ पर भी extra spaces है, ठीक है। तो if you want to remove the extra spaces from the text, you can use the trim function, option in trim function. So how you can use this trim function? Simply you have to type equal to trim, ठीक है। यहाँ पर confuse मत हो जाइए, we are having trim min also. Trim min help you to like return the mean of the interior portion of the data values. ये actually analysis के टाइम पे यूज होगा, but trims help you to remove, यहाँ पर देखिए, remove all the spaces from the text string except for single space between the word, ठीक है। अगर आपका कुछ टू वर्ड्स का डेटा है, ठीक है, तो अगर टू वर्ड्स के बीच में अगर स्पेस रिमूव नहीं करता, ओनली इट रिमूव स्पेसेस फ्रॉम बिफोर द टेक्स्ट और आफ्टर द टेक्स्ट। ओके, तो सिंपली टैब की प्रेस करने से एक्सेस कर सकते हैं आप इसको, एंड देन यू कैन सेलेक्ट द वैल्यू, यू कैन सेलेक्ट दिस वैल्यू, यू कैन सेलेक्ट दिस वैल्यू एंड यू कैन सेलेक्ट दिस वैल्यू, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू टू रिमूव योर टेक्स्ट स्पेसेस। ओके, देन सेलेक्ट, क्लोज द पैरेंथेसिस एंड एंटर इट। एज यू कैन सी यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ट्रिम फंक्शन यूज करने से क्या हुआ, जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो रिमूव हो गए। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, you can either you can go with the drag or you can double click on this dot. हाँ, words नहीं यहाँ पर है ना, क्यों गई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या थी, एक सिंगल स्पेस रखता हूं, बाकी जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो पूरे रिमूव कर देता हूं। ओके, यहाँ पर देखिए एक सिंगल स्पेस थी, यहाँ पर एक सिंगल स्पेस थी, राइट। बट यहाँ पर देखिए और एक चीज, यहाँ पर क्या हो रहा, इफ आई वांट टू लाइक चेंज दिस वैल्यूज, अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूं तो ये व्हाट आई एम सीइंग हियर, द फंक्शन। ओके, बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस फंक्शन इनटू वैल्यूज, सिंपली यू हैव टू कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, सेलेक्ट ऑल द वैल्यूज, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, देन राइट क्लिक एंड देन सेलेक्ट वैल्यूज। ओके, टू कन्वर्ट द फंक्शन इनटू वैल्यूज। अब यहाँ पर डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, यू कैन change the text also. Clear with this? Next we are having, जैसे हमारे पास trim function है, वैसे ही हमारे पास like we are having rtrim also. rtrim function help you to remove extra spaces. It remove extra spaces from the राइट साइड, आर इंडिकेट विद द राइट, ठीक है, RIGHT, राइट साइड। तो जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस रहेंगे आफ्टर द वर्ड, जो भी आपका वर्ड रहेगा उसके अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस रहेंगे आफ्टर द वर्ड, तो उन्हें सिर्फ एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करेंगे कहां से, राइट साइड से। ओके, विद द हेल्प ऑफ rtrim, एंड वी आर हैविंग ltrim also, ltrim function. ltrim function help you to, it remove extra spaces from the left side. Okay, clear with this? Next है proper function, PROPER, proper function.
तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर फंक्शन, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास, सो आई एम हैविंग वैल्यूज, एक वैल्यू है, उसके अंदर क्या है, मीन्स आई एम हैविंग ए टेक्स्ट, उसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस है, एंड आई एम हैविंग मीन्स लोअर केस में भी है वैल्यूज और अपर केस में भी. दिस इज नॉट अ प्रॉपर फॉर्मेट. टू कन्वर्ट दिस प्रॉपर फॉर्मेट इज लाइक आपका जो भी वर्ड रहेगा ना उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा. तो प्रॉपर फॉर्मेट हेल्प यू टू, इट helps to capitalize the first letter of every word. तो जितना भी टेक्स्ट रहेगा ना एक सेल के अंदर, उसको क्या करता हूं, जितने भी वर्ड रहेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करेंगे. ओके, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर फंक्शन. ओके, तो हम यहाँ यूज करेंगे प्रॉपर PROPER. okay, so equal to PROPER. okay, then you can access with the tab key and then you can select the any text. okay, simple. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H कैपिटल है, R स्मॉल है. ओके, तो प्रॉपर फंक्शन क्या करता, फर्स्ट लेटर कैपिटल करता, बाकी का रेस्ट ऑफ द लेटर्स क्या करता है, स्मॉल में कर देता. सिंपली क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर. यहाँ पर देखिए, तो ये वाला टेक्स्ट हम सेलेक्ट करे थे, इन्हें क्या करा, इन्हें फर्स्ट लेटर कैपिटल करा एंड बाकी के रेस्ट ऑफ द लेटर्स क्या करा, स्मॉल में कर दिया. एंड देन अगेन वर्ड का क्या करा, ने फर्स्ट लेटर कैपिटल करा, बाकी का स्मॉल कर दिया. सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करके टू ऑटो फिल ऑल द वैल्यूज. उसके बाद इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस फॉर्मूला इनटू वैल्यू, आप क्या करना है, सेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल C and then right click, paste as values. okay, clear? Not only you can use one function, you can nested one function to another function also. like यहाँ पर देखिए, here I have used only this value, means I have trimmed all the extra spaces, means I have removed all the spaces and then I have done proper function. okay, but if I used on this means अगर मैं यहाँ पर proper function यहाँ पर use करा तो यहाँ पर क्या होता, देखिए एक मिनट, PROPER equal to proper. अगर मैं ये टेक्स्ट पे क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आई एम गेटिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस, बट उन्हें क्या करा, सिर्फ जो भी फर्स्ट वैल्यू है उसको कन्वर्ट करा. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल डू ट्रिम एंड प्रॉपर फंक्शन एट अ टाइम. ओके, तो यहाँ पर प्रॉपर प्लस ट्रिम. ओके, सो हाउ यू कैन यूज दिस. फर्स्ट, अब सपोज यू आर गेटिंग द डेटा, पहले आपको क्या करना रहता है, यू हैव टू रिमूव द स्पेसेस, तो यू हैव टू गो विद द ऑर्डर. ओके, अगर आप इफ यू फर्स्ट आप क्या करें, इसको प्रॉपर करें देन ट्रिम करें, तो उसमें क्या होता है, ऑर्डर खराब हो जाता है. ओके, सो फॉर दैट फर्स्ट यू हैव टू यूज द ट्रिम फंक्शन टू रिमूव. ओके, पहले आप ट्रिम फंक्शन यूज करें देन प्रॉपर करें. तो आप प्रॉपर कैसा करेंगे यहाँ पर, और यू कैन गो विद द प्रॉपर और ट्रिम ऑल्सो. ठीक है, proper and then trim. okay, so next you have to select the text and then close the two brackets. यहाँ पर parenthesis important है, अगर आप एक सिंगल parenthesis के मतलब प्रेस करके एंटर करें तो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती. ओके, एरर भी शो करता. एंटर करें, यहाँ पर देखिए उन्हें क्या कर रहा, ट्रिम भी कर रहा और प्रॉपर भी कर दे रहा. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप डबल क्लिक करें, यू कैन गेट द ऑल द डेटा. ठीक है, next thing is what you have to why I'm showing again because you have to know how to convert the function into formulas. okay, तो यहाँ पर right control C for copy, then right click and then paste as values. कोई सा भी फंक्शन रहो या फिर कोई सा भी फॉर्मूला रहो, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यू कैन कन्वर्ट. अदरवाइज अगर आप फॉर्मूला रखे उसके अंदर, अगर मैं यहाँ पर कुछ नेम चेंज कराता हूँ, उन्हें क्या करता, वो ऑलरेडी ले लेता. ठीक है, क्लियर है ये, इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को?
No dots? Any dots? No, sir. No. Okay. So next we are having an option called length. Okay, length. Suppose if you want to find the length of the text. Suppose आपके पास रहता like आपका कुछ इमेज है, तो इमेज को आप you cannot store in spreadsheet. You cannot store image in spreadsheet. So for that we can store a link, right? To find the link means to find the length of the link. आप क्या करते हैं? मीन्स उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है, इफ यू वांट टू फाइंड आप लेंथ फंक्शन यूज कर सकते. ओके, लेंथ फंक्शन, इट हेल्प्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. ओके, स्ट्रिंग इज नथिंग बट लेंथ ऑफ अ टेक्स्ट. टेक्स्ट भी लिख सकते हैं आप, स्ट्रिंग को हम टेक्स्ट भी बोलते हैं. ओके, तो नेक्स्ट वी विल सी. हाँ, यहाँ पर लेंथ देखिए, LEN. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली इक्वल टू LEN. ठीक है, LEN टाइप करें एंड देन टैब प्रेस करें एंड देन डेटा सेलेक्ट करके क्लोज करें, एंटर करें. यहाँ पर देखिए इट इज शोइंग व्हाट 10 कैरेक्टर्स. तो 10 कैरेक्टर्स यहाँ पर है हमारे पास. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. We are having only 9 characters, but it's showing what 10 because it including what space also. तो यहाँ पर space को भी include करा, that's why it's showing 10 characters. Okay, तो अगर यहाँ पर length में से आपको अगर length में अगर आप you don't want any spaces, तो आप यहाँ पर trim function use कर सकते. ओके, सिंपली आप यहाँ पर ड्रैग करो, यहाँ पर आपको लेंथ फाइंड आउट हो जाती है. मीन्स यहाँ पर भारत कपूर की कितनी है, 13 है. ओके, दीपेश शाह की 11, करण कपूर की 12. ओके, यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग आल्सो. ओके, सो इन टेक्स्ट वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ लाइक कैरेक्टर है, क्लीन है. ओके, रिमूव ऑल द नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट. ओके, वी आर हैविंग लॉट ऑफ options, but this is the most usable options for converting your text. Okay, जहां पर यहाँ पर देखिए left है, left is nothing but if you want to like extract the left value from the text. Okay, यहाँ पर मैं definition बता दूंगा, यहाँ पर लिख लीजिए. left function helps you to extract values, extract characters, you can say characters from the left side. Okay, left side. अब suppose यहाँ पर देखिए I am having some kind of data, like I am having some product ID I am having. Product ID के अंदर I am having like product ID contains some string and some text and not some numbers. Okay, तो यहाँ पर NA-101 लिखा मैं, यहाँ पर लिखा BA-102. दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट्स नंबर. ओके, मैं यहाँ पर एज्यूम करूं. नेक्स्ट आई एम हैविंग CA-103 एंड देन ओके DA-104. सो विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट फंक्शन, आप लेफ्ट फंक्शन से क्या कर सकते हैं, यू कैन एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड. सिंपली आपको क्या करना है, लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट लिखना है, टैब की प्रेस करना है एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. देन यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू परफॉर्म टू ऑप्शंस, टू टास्क. लाइक यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन यू हैव टू गिव कॉमा and then you have to put the characters, put the number, how many characters you want. So
here I want only the two characters from the left side. Okay, because I want to extract only the string from the product ID. Okay, so you have to type 2. Okay, if you want more, you can type 4, 5, 6 and all. Simply kya karna hai, you have to close the bracket and enter it. So as you can see, NA aa gaya. Then if you double click on this one, it will give you all the values from the regarding to their data. Okay, clear with this? Same as write function kya aaya tha? RIGST, write function helps you to extract characters from the, not only characters, it will extract the numbers also. Okay, तो मैं यहाँ पर characters लिख रहा हूँ from the right side. Okay, तो यहाँ पर मैं right लिखूंगा मैं RIGST equal to RIGST. Tab की press करें, then you have to select the text from where you want to extract the characters, and then you have to give the comma for the, यहाँ पर क्या करना है, you have to give the number how many characters you want. So I want 3 characters from the right side, so I have to type 3 and close the bracket and enter it. So I got the 101 number because I want to extract only the numbers from the right side. Okay, then आप double click करके you can get the all the values. Okay, clear with this? Right and left. So with the help of right and left, you can extract, means you can extract first name and last name from the full name. Okay, we will see how to do that. Okay, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे options है, like mid है. Basically mid क्या करता है, return the characters from the middle of the text string. If you want some यहाँ पर हम देखेंगे like mid, ठीक है, mid देखेंगे हम, mid formula. Okay, equal to mid. Suppose I want only the hyphen from this text. Okay, from this column I want only hyphen, so you have to use mid function. Okay, mid में हम क्या कर रहे हैं, first you have to perform 3 tasks here. Okay, first you have to give the text, means you have to give the cell name. Okay, so I am selecting the cell and then give comma. आपको start कहाँ से करना है? I want to start with the 3 number, because I want only the hyphen from this column. Okay, so NA कहाँ पर आता? 1, 2. So I want to start with the 3. Okay, so you have to type 3 and then how many characters you want? I want only 1. Close करें, enter करें, देखो hyphen आ गया. Okay, so how many characters you want? It depends on you. ठीक है, तो I want only 1 character, so it will take only the 1 character. If I type here 2, तो यहाँ पर क्या हो जाता, देखो हाइफन 1 आ गया. क्यों? हाइफन के बाद कौन सी वैल्यू है? 1 की वैल्यू. दैट्स व्हाई इट टेकिंग 1 आल्सो. ओके, क्लियर? मिड फंक्शन आप मिडिल में से कोई सा भी कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते. ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट फंक्शन है, जैसा यहाँ पर सर्च है, सब्स्टिट्यूट है, वैल्यू है, टेक्स्ट है. ओके, सो इसमें कोई डॉट है आप लोगों को? टेक्स्ट फंक्शंस में कोई डॉट्स है? नो सर. Okay, let's see how to extract the character, means how to separate the first name and the last name. Okay, so Excel के अंदर देखिए,
बिफोर एक्सेल 2016 मींस एक्सेल 2016 के अंदर और 2013 और 2017 के अंदर 2007 के अंदर we don't have any AI format in Excel, but in 2019 और 2021 लेटेस्ट वर्जन उसके अंदर क्या है, एक्सेल के अंदर आप AI यूज कर सकते हैं. तो एक्सेल विल सजेस्ट ऑटो यूज मींस ऑटो सजेशन यूज करता. अब सपोज यहाँ पर मैं राहुल टाइप करा, ओके, सिंपली बिफोर दैट आप लोगों को व्हाट यू हैव टू यूज द लेफ्ट फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट नेम फ्रॉम द from the cell, and you can use the right function to extract the right means last name from the cell. But in Excel 2019 or 2021 latest version आप क्या कर सकते हैं, you don't have to use any formula to extract first name last name from the cell. Okay, simply you have to do what, you have to type Rahul and then enter it, and you have to type Payal. यहाँ पर देखिए Excel will generating auto values. यहाँ पर देखिए क्या कर रहा हूँ with the help of AI. यहाँ पर क्या कर रहा है, पायल, रीटा means what you are extracting. ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, एंटर करना है to get all the values. You don't have to use any kind of formulas to extract first name last name from the cell. Okay, then again यहाँ पर देखिए last name, if you want to extract the last name, simply you have to type Shah and then enter it, and then if you type M also, it will generate all the values for you. Okay, simply आपको क्या करना है, एंटर करना है to get the data. Clear with this? जैसा हम यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी के अंदर हम क्या यूज कर रहे थे, वी हैव यूज लेफ्ट राइट फॉर्मूला टू एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर्स. अब सिंपली मैं यहाँ पर विदाउट यूजिंग फॉर्मूला आई कैन एक्सट्रैक्ट द NA from this cell also. Simply you have to type NA, NA, and then if I type B, it will suggest all the values for me. Okay, enter it. यहाँ पर आपको पूरा डेटा आ गया. Simply आप अगर if you want the only 101 टाइप करें, एंटर करें, and 102 टाइप करें, आपको पूरे डिटेल्स आ गया. एंटर करें. If you want only the हाइफन टाइप करें, एक्चुअली हाइफन का नहीं आता शायद मेरे ख्याल से, तो ओनली यू कैन गेट द ऑटो सजेस्ट नंबर्स और कैरेक्टर्स. ओके, ये भी हम देखेंगे ऑटो फिल और सीक्वेंस वगैरह. तो एक्चुअली 2019 के अंदर भी बहुत सारे लेटेस्ट फीचर्स नहीं है एज कंपेयर टू करंट वर्जन जो हमारा 2021 लेटेस्ट